اس وقت کی اہم خبر رامپور سے، جہاں اعظم خان سے ایس آئی ٹی نے پوچھ تاچھ کی ہے اور پوچھ تاچھ کے بعد ایس پی لیڈر اعظم خان کا بیان آیا ہے۔ اعظم خان نے اپنے خاص انداز میں کہا ہے کہ ہر بار تحریری جواب دیتے ہیں۔ کئی سوال ایسے کیے جا رہے ہیں جن کا مقدموں سے ہی کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم پہلی پوچھ تاچھ میں سارے جواب دے چکے ہیں۔ اعظم خان نے یہ بھی کہا کہ اب تو یہ ہماری توہین کی جا رہی ہے جتنی بھی ہو سکتی ہے۔ چناؤ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ماحول پرامن رہے۔ تو اعظم خان نے یہ بیان دیا ہے۔ ایس آئی ٹی جس طرح سے لگاتار ان سے پوچھ تاچھ کر رہی ہے، اس کے بعد اعظم خان نے یہ بیان دیا کہ پوچھ تاچھ کے بعد ان کا کہنا ہے کہ ہر بار تحریری جواب وہ دیتے ہیں، لیکن کئی سوال ایسے ان سے کیے جا رہے ہیں جن کا مقدموں سے ہی کوئی تعلق نہیں ہے۔ پہلی پوچھ تاچھ میں ہی وہ تمام جواب دے چکے ہیں اور اب ان کو لگ رہا ہے کہ ان کی توہین ہو رہی ہے۔ چناؤ کا وقت ہے، اسی لیے وہ چاہتے ہیں کہ ماحول پرامن رہے۔ تو اے ایم یو کے سابق وائس چانسلر جنرل ضمیر الدین شاہ کے ایودھیا تنازع پر بیان کی کئی مسلم تنظیموں نے سخت مذمت کی ہے۔ ضمیر الدین شاہ نے کیس کا فیصلہ مسلمانوں کے حق میں آنے کے بعد بھی متنازع اراضی کو ہندوؤں کو تحفے میں دینے کی بات کہی تھی۔ خاص رپورٹ۔ ایودھیا تنازع یعنی رام مندر بابری مسجد معاملہ ان دنوں سرخیوں میں ہے۔ بابری مسجد رام مندر تنازع سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ چیف جسٹس آف انڈیا نے کہا ہے کہ آنے والی 17 اکتوبر تک اس اہم معاملے پر سنوائی ہوگی اور نومبر میں فیصلہ متوقع ہے۔ اس حساس معاملے پر بیانات کا سلسلہ جاری ہے۔ مسلمانوں کی تنظیم انڈین مسلمز فار پیس نے بڑا اور اہم بیان دیا ہے۔ مسلم دانشوروں کا ماننا ہے کہ اگر عدالت مسلم فریق کے حق میں فیصلہ سناتی ہے تو مسلم فریق کو چاہیے کہ وہ زمین ہندو بھائیوں کے حوالے کر دے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے سابق وائس چانسلر جنرل ضمیر الدین شاہ کا کہنا ہے کہ اس مسئلے کا حل نکلنا چاہیے، ورنہ ہم ہمیشہ لڑتے رہیں گے۔ جو سب سے اہم مسئلہ یہ ہے وہ مسلم کمیونٹی میں یہ پرابلم یہ ہے کہ جو پلیس آف ورشپ امینڈمنٹ ایکٹ ہے 1991 کا، وہ اتنا پاورفل نہیں ہے کہ وہ آئندہ ان حرکتوں کو روک سکے۔ تو اسٹرینتھن کرنا ہے وہ پلیس آف ورشپ امینڈمنٹ ایکٹ 1991، اس میں سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے جو اس کو وائلیٹ کرے۔ یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ امید ہم کبھی ہارے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارا یہ بس یہی لاسٹ ڈچ اٹیمپٹ تھا کورٹ ورڈکٹ سے پہلے کہ پورا ملک جو ہے پریشر ڈالے دونوں پارٹیز میں اور کہے کہ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کر لو، کیونکہ اس میں ہار کسی کی نہیں ہوگی۔ دوسری جانب انڈین مسلم فار پیس تنظیم کے اس بیان پر مسلمانوں کا ملا جلا رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ تمام کے تمام لوگ ملت فروش لوگ، ملت کے ضمیر کو بیچنے والے لوگ مدھستہ کی بات کر رہے ہیں۔ مدھستہ کس سے کرنے جا رہے ہیں؟ کوئی بتائے؟ 6 پچکار ہیں، 5 پچکار کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی اب میڈیشن نہیں چاہیے، تو یہ کس سے مدھستہ کرنے جا رہے ہیں؟ یہ سیدھے سیدھے بابری مسجد کے سوداگر ہیں، سودا کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیے، ضمیر الدین شاہ صاحب جو ہیں وہ فوجی ویکتی ہیں۔ وہ نہ تو اس کی مقدمے کی قانونی حیثیت کو سمجھ رہے ہیں اور نہ اس کی شرعی حیثیت کو سمجھ رہے ہیں۔ شاہ صاحب کو جاننا چاہیے کہ کوئی شخص وہی چیز دے سکتا ہے، گفٹ کر سکتا ہے جس کا وہ مالک ہو۔ ضمیر الدین شاہ کو شاید یہ نہیں معلوم ہے کہ وقف ایکٹ یہ کہتا ہے کہ واقف بھی اگر کسی جگہ کو مسجد کے لیے وقف کر دے تو واپس نہیں لے سکتا ہے۔ پورے بھارت کے 20 کروڑ مسلمان بابری مسجد کی زمین کے مالک نہیں ہیں۔ مسلم دانشوروں کا خیال ہے کہ اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ مسلم فریق کے حق میں آتا ہے تو کیا اس زمین پر مسجد بنانا آسان ہوگا؟ یعنی مسئلہ جوں کا توں رہ جائے گا۔ ایسے میں مسلمانوں کو بڑا دل کرتے ہوئے متنازع زمین رام مندر کے لیے ہندو بھائیوں کو تحفے میں دے دینی چاہیے۔
इससे मुल्क में भाईचारे का माहौल कायम रहेगा और ये कदम गंगा जमनी तहजीब के लिए भी अहम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और वहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन कमाल फारूकी के मुताबिक अयोध्या तनाज़े में सालिसी या जमीन को तोहफे में देने से मुतालिक अब कोई बात नहीं की जानी चाहिए। कमाल फारूकी के मुताबिक ये मामला सिर्फ बाबरी मस्जिद से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि राम मंदिर के हिमायती मस्जिदों, गिरजाघरों और गुरुद्वारों की एक लंबी फहरिस्त तैयार कर चुके हैं। इसीलिए मुसलमानों को अयोध्या तनाज़ा मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करना चाहिए। कोई भी काम इस तरह का सोचते हैं कि हम गिफ्ट कर दें, तो मैंने जैसे कहा कि इन मुस्लिम इंटेलेक्चुअल से पूछे कि क्या वो आपकी प्रॉपर्टी है जो गिफ्ट कर दें। और दूसरी बात यह है कि अगर आपकी बात 1 मिनट के लिए मान भी जाए तो क्या ख्याल है आपका, ये एंड हो जाएगा यहाँ पर? ये बाबरी मस्जिद के बाद ये सिलसिला ख़त्म हो जाएगा? क्योंकि बाबरी मस्जिद के बाद जो है हमारे दोस्त जो हैं, पड़ोसी हमारे सुब्रमण्यम स्वामी साहब जो है ना, वो तो पूरी किताब उन्होंने लिखी हुई है जिसमें सैकड़ों मस्जिदों की निशानदेही की हुई है, और वो बाकायदा उन्होंने किताब, उनकी पब्लिश किताब है, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने जो मीडिएशन कमेटी थी उसको भी दी थी। तो उन लोगों के तो पूरा जो निशाना है वो सिर्फ एक बाबरी मस्जिद नहीं है, बल्कि और मसाजिद और दूसरी मजहबी इकाइयाँ। और मस्जिदें क्यों कहिए, मतलब कि वो फिर उसके बाद चर्चेज़ भी हैं, फिर गुरुद्वारे भी हैं, फिर जो मंदिर भी हैं वो कौन से पॉइंट ऑफ व्यू के मंदिर होंगे वो सोचेंगे ना सर। अब इसका कोई मौका नहीं है, अब इसका कोई मौका नहीं है। हम उनकी नीयत पर कोई शुबा नहीं करते, लेकिन अब इसका कोई मौका नहीं है, क्योंकि बिल्कुल आखिरी मराहिल के अंदर हमारा सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग चल रही है। लास्ट वीक होगा, अब ये मंडे से जब होगा उसके बाद फिर कोई और हफ्ता नहीं होगा, ख़त्म हो जाएगी फिर उसके बाद ये। झारखंड में मंजूर शुदा मदरसों के मुलाजमीन गुज़िश्ता 32 माह से तनख्वाहों से महरूम हैं। मादी जांच के नाम पर उनकी तनख्वाह अदायगी पर रोक लगी है, जिसकी वजह से मदरसा मुलाजमीन सख्त माली बुहरान के शिकार हैं। और सबसे अफसोसनाक पहलू ये कि इस दरमियान 9 असातिज़ा का इंतकाल भी हो चुका है, लेकिन हुकूमत के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। खास रिपोर्ट। झारखंड के मंजूर शुदा मदरसों के मुलाजमीन का कोई पुरसाने हाल नहीं। रियासत के 186 मंजूर शुदा मदरसों में से 114 मदरसे के मुलाजमीन गुज़िश्ता 32 माह से अपनी तनख्वाहों से महरूम हैं, जिसकी वजह से ये सब सख्त माली बुहरान का शिकार हैं। मदारिस मुल्हक़ा के असातिज़ा व मुलाजमीन को 32 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, जिसकी वजह से असातिज़ा न सिर्फ ये कि फाका कशी के शिकार हैं, बल्कि अब तक 9 उस्ताद की इलाज मुनासिब न कराने की वजह से मौत भी हो चुकी है। असातिज़ा सख्त परेशानी में है, बड़ी मुसीबत में है और बड़ी अज़ियतनाक ज़िंदगी गुजार रहे हैं। किसी ने हमारे लिए कोई आवाज़ नहीं उठाई और न कोई कदम उठाया कि हमारे मसाइल हल हों। ये क्या कह सकते हैं इसको, हम सियासत के शिकार हुए, हम कि तासुब के शिकार हुए, हम किस चीज़ के शिकार हुए नहीं कह सकते हैं। बस अपना दर्द अपने ऊपर सह रहे हैं, और आइंदा क्या होगा, कब हल होंगे मसाइल, कुछ अता पता इसका नहीं है। वाज़ेह है कि मदरसा मुलाजमीन की तनख्वाह अदायगी के मामले में रियासती अक़लियती कमीशन गुज़िश्ता कई महीनों से सिर्फ दावे और वादे ही करता आया है। अगर वाकई अक़लियती कमीशन कोशिश करता तो उसके नतायज सामने जरूर आते। अक़लियती कमीशन के बाद अब मरकजी वज़ारत फ़रोग़ इंसानी वसाइल के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड के रुकन डॉक्टर शाहिद अख्तर ने इस ताल्लुक से कदम उठाने का यकीन दिलाया है। ज़्यादातर मदरसों के अभी भी जैसे शिकायतें आ रही कि पैसा उनको नहीं मिला है, उसमें क्या है कि बार बार ये इंक्वायरी और जांच का जो ये एक तरह से सरकारी महकमा जो रुकावट पैदा कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि ऑलरेडी जब जांच एक अधिकारी के द्वारा जब किए जा चुके हैं तो उसमें फिर जांच करना ये कहीं भी ठीक नहीं है, ये परेशान करने वाली बात है। मैं फिर इसको 2 बार इसको फॉलो अप कर चुका हूँ। एक बार जो यहाँ के जो मिनिस्टर हैं उनके साथ में जो हम लोग की जो टीम मुख्यमंत्री पास मिलने के लिए आएगी, मैं मुख्यमंत्री से भी डिमांड करूँगा। वाज़ेह रहे कि रियासत की मौजूदा बीजेपी हुकूमत के जरिए बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड से मंजूर शुदा इन मदरसों की मादी जांच का हुक्म दिया गया था, और इस जांच में सिर्फ 72 मदरसों को सही पाया गया। बकिया मदरसों के मुलाजमीन अभी तक हुकूमत के रहमो करम के इंतजार में ही हैं।
न्यूज 18 उर्दू के लिए रांची से नौशाद आलम की रिपोर्ट। अगर हुकूमत उत्तर प्रदेश की निसाबी किताबों को कौमी यकजहती के नुक्ते नज़र से सेकुलर बुनियादों पर इस्तेमाल नहीं किया गया तो इत्तेहाद की खुशगवार फिजा भी खराब हो जाएगी, मकदर हो जाएगी और नई नस्ल को भी सही तारीख से वाकिफ नहीं करवाया जा सकेगा। दीनी तालीमी काउंसिल के मुताबिक संजीदा जायजे की रोशनी में बार बार मुतालबात किए जाने के बाद इन खामियों को दूर नहीं किया गया जो कि बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। एक खास तज्जियाती रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में इब्तिदाई दर्जात की सरकारी दरसी किताबों और कुछ गैर दरसी किताबों में तारीख को मस्क करने, हक़ाइक़ को गलत तरह से पेश करने और गलत मवाद को शामिल करने की शिकायत दीनी तालीमी काउंसिल एक जमाने से करती आ रही है, लेकिन 3 मरतबा तहरीरी तौर पर जायजा पेश करने के बाद भी कोई इस्लाही कदम सरकारी सतह पर नहीं उठाया गया। और ऐसा सिर्फ मौजूदा हुकूमत में ही नहीं हुआ है, बल्कि साबिका हुकूमतों ने भी इस ज़िम्न में कुछ नहीं किया। समझते हैं कि जो मुस्तनद और ऑथेंटिक तारीख़ है उसको तो जाहिर सी बात है नहीं बदला जा सकता और ना कोई अपनी मनगढ़ंत तारीख़ ईजाद कर सकता है। इसलिए जो सही तारीख़ है, जो ऑथेंटिक तारीख़ है, उसी को सिलेबस में निसाब में रखना चाहिए और सिलेबस में कोई भी तब्दीली के लिए जो भी एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी कंसर्न्ड लोग हैं, हम समझते हैं उन सबकी राय ली जानी भी ज़रूरी है, जिससे कि किसी के दिलो दिमाग में शक व शुबहा न पैदा हो। ये मुतालबात मुसलसल किए गए और इनका मकसद तारीख़ व निसाब को जमहूरी कदरों पर इस्तेवार करके सच्चाई को सामने लाना और लोगों में मोहब्बत और इत्तेहाद को कायम करना था। लेकिन दीनी तालीमी काउंसिल के महदूद होते वसाइल और रियासती सरकारों की मुसलसल अदम तवज्जुही ने मंजरनामे को तब्दील ही नहीं होने दिया। निसाब में और हमारी जो हिस्ट्री है उसमें आरएसएस का वो जिक्र नहीं है जो वो चाहते हैं, जो तस्करा वो चाहते हैं वो है नहीं उसमें। तो जाहिर सी बात है वो चाहेंगे कि भाई उसको तब्दील किया जाए। और तारीख़ हमेशा रियासत के अंडर में लिखी जाती, गवर्नमेंट के अंडर में लिखी जाती। मैं समझता हूँ कि हुकूमतों को इस जानिब तवज्जो देना चाहिए कि तालीमी निसाब के या तारीख़ के तब्दील कर देने से पूरे मुल्क का नुकसान है, आने वाली नस्लों का नुकसान है और वो नुकसान ऐसा है जिसकी भरपाई मुश्किल और मुश्किल तरीन। दीनी तालीमी काउंसिल की जानिब से तहरीरी तौर पर पेश किए गए जायजे के मुताबिक कई दरसी किताबों में मुस्लिम हुक्मरानों, पैगंबरों के ताल्लुक से गलत हवाले पेश किए गए हैं। साथ ही कुछ गैर दरसी किताबों में भी ऐसा मवाद शामिल किया गया जो कि काबिल एतराज है और जिसे पढ़ने के बाद लगता है कि एक मंसूबा बंद साजिश के तहत ही इस्लाम मुखालिफ ज़हनों ने ये काम किया है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए लखनऊ से तारक कमर की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। हज 2020 के लिए दीगर रियासतों की तरह मध्य प्रदेश में भी ऑनलाइन फॉर्म भरने का अमल शुरू हो गया है, लेकिन रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में सर्वर डाउन होने और बिजली की दस्तयाबी ने आज़मीन हज के सामने कई मुश्किलात पैदा कर दी हैं। खास रिपोर्ट। हज 2020 के लिए 100% ऑनलाइन फॉर्म दाखिल करने का ऐलान तो कर दिया गया है, लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्तलिफ इलाकों में सर्वर डाउन और बिजली की अदम दस्तयाबी ने आज़मीन हज के सामने मुश्किलात पैदा कर दी है। और तो और बेशतर लोग ऐसे भी हैं जिन्हें ऑनलाइन फॉर्म की जानकारी भी नहीं है। यहाँ तो शट डाउन कभी भी हो जाता है तो नेट कैसे चलेगा, यहाँ पर सर्वर डाउन हो जाता है, बहाना होता है सर्वर डाउन हो गया और कट ऑफ कर देते हैं सर्वर डाउन के नाम पे, कहीं लाइट नहीं होती। तो ये ऑनलाइन सिस्टम कैसे कामयाब हो पाएगा? यहाँ साहब हज का फॉर्म लेने आए थे तो पता चला यहाँ ऑनलाइन है, तो फिर ऑनलाइन प्रोसीजर करेंगे पूरा जी। इससे कुछ परेशानी हुई या आसानी हुई? नहीं कोई परेशानी नहीं, बस वो बैंक से पैसा इधर से उधर करना पड़ेगा। फॉर्म भरने के लिए बताया कि अब सब प्रक्रिया ऑनलाइन हो चुकी है, यहाँ पे ऑनलाइन भरा जाएगा और हार्ड कॉपी से रिलेटेड जो भी है कि वो अब ख़त्म कर दिया।
मध्य प्रदेश के वजीर अक़लियती फलाह बहबूद ने इस मुश्किल से निमटने के लिए सूबे के तमाम अजला में आज़मीन हज को मुफ्त ऑनलाइन फॉर्म दाखिल करने के लिए अपने सेंटर कायम करने और जिला हज कमेटियों को वहां पर काम करने की हिदायत दी है। इंशाअल्लाह हम हर ज़िले में अपने ज़िला हज कमेटी हैं उनको एक्टिव करेंगे, उनके ज़रिए से ज़िले में ही फॉर्म भरवाने की कोशिश करेंगे हम। और हमारे हज कमेटी के जो मेंबर लोग हैं वो 3-3, 4-4 ज़िले के ज़िम्मेदार होंगे, और जिनको भोपाल करीब पड़ता है हमारी कोशिश होगी कि हम उनसे कहेंगे भोपाल से फ्लाइट दो। मध्य प्रदेश की मुस्लिम तंजीमों ने मरकजी हज कमेटी से ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन फॉर्म दाखिल करने की सहूलत देने का मुतालबा किया है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भोपाल से मेहताब आलम की रिपोर्ट। और वहीं हज 2020 के लिए दिल्ली में भी ऑनलाइन हज दरख्वास्त फॉर्म भरे जा रहे हैं। दिल्ली हज हाउस में हुकूमत की जानिब से दरख्वास्त गुजारों के लिए अच्छे इंतजाम किए गए हैं। यहाँ फॉर्म दाखिल करने के लिए डॉक्यूमेंट्स का स्कैन करके अपलोड करने के साथ साथ दिल्ली हुकूमत के महकमा सेहत के डॉक्टर्स की एक टीम भी मौजूद है। ये हमारा ई सहूलियात पर मुश्तमिल जो हज फॉर्म भरने का सेंटर हमने कायम किया है वो कल यानी कि 10 अक्टूबर से काम करना शुरू कर चुका है, और इंशाअल्लाह अगले माह की यानी कि नवंबर की 10 तारीख तक ये काम करता रहेगा। और अगर हज कमेटी ऑफ इंडिया और हुकूमत हिंद की तरफ से तारीख़ में इजाफे का बढ़ाने का ऐलान नहीं होता है तो 10 नवंबर तक ये मरकज़ काम करेगा। और अभी तक तकरीबन 40 फॉर्म जमा हो सके हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह अगले दिनों से इसमें मज़ीद से मज़ीद तेज़ी आएगी। और हम दिल्ली के तमाम जो मसाजिद हैं उनके आइम्मा से भी हमने दरख्वास्त की है और उनको एक ऐलाननामा भेजा है। बहुत अच्छी सुविधा है यहाँ पे, बड़ा परफॉर्म कर रहे हैं, एक दूसरे का साथ देना। और हमें तो बचपन से ही थी, वैसे तो मैं एकदम वही आया था कि अपनी वाइफ को ले जाने का इरादा है। मन ने खूबी तमन्ना साहब तो कभी हो जाए तो जल्दी जल्दी हो जाए। पिछली बार आए थे हम तो डेट निकल गई थी, 21 तारीख में आए थे, 19 तारीख में डेट नहीं ख़त्म हो गई, 19 दिसंबर को मुझे तो पासपोर्ट में थोड़ा देर हो गई थी। 21 तारीख में मिला था मेरे को पासपोर्ट दिसंबर की। मैं जब ये आया तो ये बोले कि टाइम तो ख़त्म हो गया, अब तो अगले साल। गांव देहात के स्कूल और बिलखुसूस मदारिस से तालीम हासिल करने वाले तालिब इल्मों को शहर के स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी सतह पर मुकाबले के काबिल न समझना अब एक बड़ी गलतफहमी साबित हो रही है। देही इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा और तालिबात न सिर्फ कड़ी मेहनत करके आला तालीम के मुकाबला जाती इम्तिहानात के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं, बल्कि बेहतरीन मुजाहरा भी कर रहे हैं, गोल्ड मेडल भी हासिल कर रहे हैं। मेरठ यूनिवर्सिटी के शोबा उर्दू में एमए उर्दू और एमफिल की तालिबा फरहाना, तालिब इल्म राहत और मेरठ कॉलेज के शोबा उर्दू में एमए की तालिबा रहनुमा ने इमसाल एमए और एमफिल उर्दू में सबसे ज्यादा नंबर हासिल करके गोल्ड मेडल हासिल किया है। खास बात यह है कि इन तीनों ही का ताल्लुक गाँव में काश्तकार खानदान से है। शुरुआती तालीम गांव के मदारिस और सरकारी स्कूल से हासिल करने वाले ये बच्चे न सिर्फ खुद आला तालीम हासिल कर रहे हैं बल्कि अपने छोटे भाई बहनों की रहनुमाई भी कर रहे हैं। शुरुआती तालीम मैंने अपने ही गांव के एक मदरसे से हासिल की थी और गांव की ही मैं रहने वाली हूँ। घर पे पापा खेती करते हैं और हम 4 बहनें हैं, एक भाई है। उनका ये है कि हमारी लड़की अपने पैरों पे खड़ी हो जाए, किसी की मोहताज न रहे आगे चलकर। मेरी इब्तिदाई तालीम गांव के ही एक स्कूल वीर अब्दुल हमीद पब्लिक स्कूल से 3rd क्लास तक की तालीम हासिल की। उसके बाद मैंने यहाँ मेरठ में मदरसा जामिया फातिमातुज़ ज़हरा लिल बनात से मैंने तालीम हासिल की, मौलवियत की तालीम हासिल की, आलमियत की तालीम हासिल की, और उसी के साथ साथ मैंने हाई स्कूल इंटर की तालीम हासिल की। BA MA मैंने मेरठ कॉलेज से किया है। पिछले 2017 में मुझे MA में टॉप करने के लिए मौलाना इम्तियाज़ अली अर्शी गोल्ड मेडल मिला था, और इस बार MPhil में टॉप करने के लिए VC मेडल मिला है। मेरी तालीम इब्तदाई मदरसे से रही। मैंने कुरान करीम हिफ्ज़ किया, उसके बाद जो है आलिमियत मुकम्मल की। गुज़िश्ता कुछ सालों में तालिबात की तादाद में न सिर्फ इजाफा हुआ है बल्कि आला तालीम में हर एक शोबे में लड़कियां खुद को लड़कों से बेहतर साबित कर रही हैं। वो लड़कियां गांव वाली जो हैं वो शहर के मुकाबले में और ज़्यादा मेहनती होती हैं। जाहिर है कि उनको अगर सही माहौल मिले, सही पढ़ाने वाले मिल जाएं तो बहुत बेहतर कारकर्दगी करती हैं।
मदरसे के तलबा और तालिबात में ना तो सलाहियत की कमी है और ना ही जज्बे की, बस जरूरत है तो उनकी रहनुमाई और हौसला अफजाई की। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मेरठ से तंजीर अंसार की रिपोर्ट। मुल्क भर में इन दिनों एनआरसी पर खूब बहस हो रही है, बातें हो रही हैं, लेकिन बेंगलुरु में चंद समाजी कारकुनों ने बातों के बजाय अमली काम का मुजाहरा किया, और क्या खूब किया। जी हाँ, इन समाजी कारकुनों ने मस्जिद के तहत अवाम के दस्तावेजात को दुरुस्त करने का बीड़ा उठाया है। तो आप देखिए हमारे बुलेटिन की ये खास रिपोर्ट। मुझे इजाजत दें, आदाब। बंगलुरु के केजी हल्ली इलाके के मस्जिद मामूर में एक रोजा कैंप मुनक्किद हुआ। इस कैंप में इलाके के तमाम अफराद, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो या ईसाई, सबों के दस्तावेजात को दुरुस्त करने और नए शनाख्ती कार्ड बनाने की कार्रवाई अंजाम दी गई। हफ्त रोजा ऊंची आवाज के तहत चंद समाजी कारकुनों ने मस्जिद को मरकज बनाकर इस खिदमत को अंजाम दिया। आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और दीगर दस्तावेजात को दुरुस्त करने के अलावा तलबा के स्कॉलरशिप फॉर्म भी इस मौके पर भरे गए। आधार कार्ड, आईडी कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट, दीगर जितनी चीज़ें हैं वो तमाम चीज़ों को हम लोग कवर करने की कोशिश किए थे। गुज़िश्ता मरतबे 300 से 400 अफराद मुस्तफ़िद, फिर इस मरतबे भी इसी तरह की एक तहरीक चलाई गई है और मसाजिद को मरकज़ बनाकर फिर दीगर तमाम लोगों को उसी के तहत ऐसे दस्तावेज़ात मुहैया करने के सिलसिले में इक़दाम हो रहे हैं। बिल्कुल जितने भी खिदमत हैं तमाम के तमाम फ्री हैं, कोई 1 रुपया भी किसी से फीस नहीं ली जा रही है। आप फिर आके स्कॉलरशिप मुफ्त में करा रहे हैं, NSP हो, अरीवो लोन हो, जितना भी स्कीम है स्कॉलरशिप के अंदर उसमें क्या भी ये नहीं है, पूरा जितना भी वो करा रहे हैं स्कॉलरशिप।